Hello everyone. In this video, we are going to discuss an important topic, reciprocal lattice, solid state physics. This question is very important not only for knowledge purpose but also from examination point of view. You can see I have written here question, the pattern which is asked in the examination regularly. What is reciprocal lattice? Find its primitive translational vector. Prove that every reciprocal lattice vector is normal to a lattice plane. This is the property of the reciprocal lattice. This question has been asked in 2012, 14, 16, 18. So you can see its importance, alternate year. And this one is the short note, which has been asked in 13, 15, 18. Okay. So this is your question which has been asked in group B paper 6, and this question has been asked in group A paper 7B. So this question is very important for degree 3 students. Okay, so let us start. First of all, we will discuss reciprocal lattice itself, and next part will be under discussion will be primitive translation vectors. And lastly, we will discuss its property, one of the property that every reciprocal lattice vector is normal to a lattice plane. Okay, so let us see. We are going to understand the topic reciprocal lattice. But before going to understand reciprocal lattice, first we will discuss its introductory part. Why we the need of reciprocal lattice? We are aware from direct lattice. So what is the need of reciprocal lattice? All these things will be discussed in this video one by one. See here, every crystal has two lattices associated with it, the crystal lattice or direct lattice and the reciprocal lattice. ये आप मान के चलिए या यूं कहें कि आप जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस में दो लैटिस जुड़ा हुआ था, उसके साथ अटैच होता है, चाहे एक डायरेक्ट लैटिस होता है या रेसिप्रोकल लैटिस, या नहीं बल्कि अथवा भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दो लैटिस जुड़ा हुआ है, क्रिस्टल लैटिस और डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, वी नीड ओनली डायरेक्ट लैटिस टू डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानना है तो डायरेक्ट लैटिस ही सफिशिएंट है। इसके बाद हम आगे एटॉमिक अरेंजमेंट जानने के लिए ब्रेक्स एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़े हैं। ब्रेक्स एक्स रे डिफ्रैक्शन जिनको भी याद है या जो जानते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम लोग एटॉमिक अरेंजमेंट और प्लेन के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन आप एटम को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। We only get the breaks peak in different position and direction. These breaks peak are related to atomic planes in direct lattice, but this relationship is not direct. Okay? तो आप एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये जान सकते हैं कि किस एटॉमिक अरेंजमेंट का प्लेन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये तो जान सकते हैं, लेकिन आप एटम को डायरेक्ट देख नहीं सकते। एटॉमिक अरेंजमेंट समझ सकते हैं लेकिन एटम को डायरेक्ट देख नहीं सकते। अब ये समस्या हो गई कि आखिर इसके बारे में, इसको विजुअलाइज हम कैसे करें, क्या किया जाए। तो इस समस्या का समाधान किया पीपी इवाल्ड। इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, एक नया लैटिस इंट्रोड्यूस करके, जिसका नाम उन्होंने दिया रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, so now we are going to define reciprocal lattice.
Each set of parallel planes in direct lattice can be represented by normal to these planes and having length equal to the reciprocal of the interplanar spacing. इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मतलब दो प्लेन के बीच की दूरी, उसकी दूरी के बराबर लेंथ लेके हम किसी भी आर्बिट्ररी ओरिजिन से हम एक प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल जहाँ खत्म होता है वहां पर इन पॉइंट पर हम पॉइंट मार्क कर देते हैं, लिखे हुए हैं पॉइंट्स आर मार्क्ड एट देयर इन पॉइंट, द इन पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ए लैटिस which is called the reciprocal lattice. रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिग्मा HKL, HKL हो गया प्लेन का नाम और सिग्मा हो गया रेसिप्रोकल लैटिस का सिंबल, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर whose magnitude is equal to 1 by DHKL. What is DHKL? DHKL is the distance between the two planes, interplanar distance you may say, interplanar separation. So we take the inverse of this 1 by, and this is called reciprocal lattice, and whose direction is parallel to normal HKL planes. So this is the definition of the reciprocal lattice. Now we will be talking the second part of the question, that is primitive translation vectors of reciprocal lattice. देखिए अब लैटिस है, मानते हैं एक प्रिमिटिव हम यूनिट सेल की चर्चा करते हैं, तीन एक्सिस लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स के जगह पर हम ए लेते हैं एक्स तरफ, वाई एक्सिस की तरफ बी लेते हैं और जेड एक्सिस की तरफ सी लेते हैं। अगर प्लेन बी सी का है तो एरिया हो गया बी क्रॉस सी और उस पर हाइट हो गया ए। अब एक प्लेन के ऊपर जो ठीक उसके ऊपर दूसरा प्लेन है जो पैरेलल है, मान लेते हैं उसके बीच का डिस्टेंस है डी, तो प्लेन का हम नेमिंग करेंगे 1 0 0 0 1 1 और 1 0 1 और 1 0 1 1 1। सो कौन प्लेन लेते हैं उसी पर उसका नामकरण करके डी लगा देंगे इसमें। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले जानिए ए बी सी यहाँ पर है, ये हो गया ट्रांसलेशन वेक्टर डायरेक्ट लैटिस का। और रेसिप्रोकल लैटिस में हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग पहचान बनाएंगे, इस पर स्टार लगा दिया, आप देख सकते हैं स्टार इज एडेड हियर। सो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर है। और अगर स्टार नहीं लगाते हैं, प्लेन रहने देते हैं ए बी सी, तो ये डायरेक्ट लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ लिखें ए स्टार डॉट ए, बी स्टार डॉट बी, सी स्टार डॉट सी इक्वल टू 2 पर, लेकिन फिर नीचे लिखें ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी इक्वल टू बी स्टार सी इक्वल टू ऑल आर जीरो हियर। वाई? इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब है ये जो ए स्टार है बी और सी पर प्लेन है, यानी बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, यानी हर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। द रिलेशन ए डॉट बी ए डॉट सी जीरो, यहाँ क्लियर क्या हुआ, implies that vector A is perpendicular to the plane B and C। तभी तो A डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा अगर लिखेंगे cos 90 जीरो हो जाएगा। In other words, the vector A star is parallel to vector B cross C। जब ये B क्रॉस C जब बोलेंगे तो वो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट चला जाएगा A स्टार की तरफ, and that is why we say that vector A star is parallel to vector B cross C। Therefore, we can write A star is equal to A B cross C। What is capital A here? Capital A is a scalar multiplier. Okay. Now, this is taken here in equation 1. So, from equation 1, we get A star A. Here, A star A means A B cross C, here equation 3, and it is equal to what? 2 pi. So this one is here. So is it clear? If it is clear, then I proceed here.
So with this equation we can get a. This a means this term which is multiplied with a, now it is taken right side and it will be a is equal to 2 pi by this one. So this is the value of a. Once we get the value of a, again it is substituted in equation 3. Here a star is equal to, we take the value of a here, it will be a star is equal to 2 pi b cross c, a dot b cross c. In the denominator a dot b cross c, तो ये नॉर्मल हो गया उस प्लेन पर. इसी तरह क्यूब में 3 पैरेलल प्लेन आमने सामने होता है तो आपको 3 रेसिप्रोकल लैटिस तक ए स्टार निकालते हैं, बी स्टार निकालते हैं और सी स्टार निकालते हैं. सब में एक चीज कॉमन दिखेगा, नीचे जो है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी डिनोमिनेटर में है, ये है वॉल्यूम. यहाँ लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी in each equation 4, 5 and 6 is the volume of the primitive, और ये ऊपर में एरिया है उस प्लेन का जिस प्लेन पर आप लंब डालने जा रहे हैं. The vectors in the crystal lattice A, B, C have the dimension of length. और ये जो ए स्टार है, बी स्टार है, सी स्टार है, इसका भी लेंथ होता है, इनवर्स ऑफ लेंथ होता है, लेंथ इनवर्स. The crystal lattice represents a lattice in real space. The reciprocal lattice is, on the other hand, a lattice in Fourier space or K space. The wave vector K is always drawn in Fourier space. Now, we will discuss how to construct reciprocal lattice. Okay? We are going to discuss how to construct reciprocal lattice. तो इसका थोड़ा सा हिस्सा आप ऊपर में भी देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हम क्या करते हैं. सबसे पहले एक ऑरिजिन लेते हैं, लैटिस पॉइंट. कंसीडर लैटिस पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज ए कॉमन ऑरिजिन. कोई एक ऑरिजिन ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी ऑरिजिन, और उस ऑरिजिन से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन. अभी तो आपको बताया कि अगर प्रिमिटिव क्यूब यूनिट सेल क्यूब लेते हैं तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये एक प्लेन ऊपर में है, एक प्लेन शेडेड पार्ट जो है ये पैरेलल प्लेन है, इसका पैरेलल प्लेन इधर आई, फ्रंट जो है ये पोर्शन फ्रंट और उसका जो बैक है वो भी पैरेलल है. तो हम उस ऑरिजिन से, जो ऑरिजिन हम आर्बिट्ररी हम चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उससे सभी पैरेलल प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अब नॉर्मल का लेंथ क्या होना चाहिए, पहले भी बोल चुके हैं फिर बोल रहे हैं कि जिन दो पैरेलल प्लेन को आप कंसीडर कर रहे हैं उस दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस d, जिसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, उसके लेंथ के बराबर, बल्कि उसके इनवर्स के बराबर, इनवर्स लेंथ ले करके हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जहां नॉर्मल अंत होता है वहां पर एक पॉइंट मार्क. तो अभी आप समझ गए. सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, एक ऑरिजिन, एक कॉमन ऑरिजिन सेलेक्ट करते हैं, उस ऑरिजिन से क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल. किस पर, तो ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर. लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होना चाहिए, अभी बोल दिए, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. और जितना टर्मिनल पॉइंट नॉर्मल का आएगा सब पर एक एक पॉइंट मार्क कर देंगे, डॉट लगा देंगे. उसी वो मिल के जितना होगा लैटिस जो बनेगा वो रेसिप्रोकल लैटिस करेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूनिट सेल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा 90 है बट बीटा नॉट इक्वल टू 90, इट इज ग्रेटर देन. तो आप ये देख सकते हैं, ये सी है ये लाइन, और ये है बी, और ऊपर है ये ए बी सी और अल्फा बीटा दोनों. इसको थोड़ा और डिटेल से यहाँ समझ सकते हैं. हम लोग ये कई प्लेन लिए हैं, 1 0 0 0 0 1. अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके ऊपर प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर, देखिए ये जो हम इशारा कर रहे हैं ये नॉर्मल ड्रॉ किया इस प्लेन पर, और जहाँ नॉर्मल इसके लेंथ के इनवर्स हम ले करके जहाँ लेंथ खत्म हुआ
एंड पॉइंट मिला, वहाँ एक पॉइंट दे दिया। इसका डबल देखिए यहाँ आ जाए 200, उसका ट्रिपल देखिए 300, उसका 4 टाइम्स देखिए 400। ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये प्लेन पर पैरेलल प्लेन, अब दूसरा पैरेलल प्लेन लेते हैं, या इस पर फिर ड्रॉ नॉर्मल करते हैं। यहाँ लिख दिए 001, और उसका डबल हो गया 002, इसका डबल। यहाँ देखिए ये डॉट सब जगह पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट मार्क जो किया हुआ है इसका एक यही है रेसिप्रोकल लैटिस। ये जो लैटिस जाल एक बन गया पॉइंट का, जो पैरेलल प्लेन पर इनवर्स ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग लेंथ को लेकर के हम जो नॉर्मल खींचे हैं, और जो टर्मिनल पॉइंट पर इन पॉइंट पर मार्किंग कर दिए हैं, इसी का जो नेटवर्क बना ये रेसिप्रोकल। ठीक है। अब कैसे बना है तो फिर ये प्रोसेस वही लिख दी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेथड हुआ हाउ टू कंस्ट्रक्ट लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। ये 1/D100 देख रहे हैं। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, ये है क्वेश्चन। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि हम 3-4 पार्ट में इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले रेसिप्रोकल लैटिस का डिफिनेशन देंगे, रेसिप्रोकल लैटिस क्या है वो समझेंगे, एंड इन सेकेंड पार्ट में हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है। थर्ड पार्ट में समझेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। एंड फोर्थ पार्ट में एक प्रॉपर्टी इसका डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ये पोर्शन एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज। तो इसमें आपको शुरू में बता चुके, बहुत रिव्यू कर देते हैं बहुत शॉर्ट में, कि डायरेक्ट लैटिस से हम लोग क्या जानकारी मिलती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। लेकिन ब्रेग्स एक्सरे डिफ्रेक्शन जब हम एक्सपेरिमेंट से पता किए, पता चला कि एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्लेन क्या है, ये पता चला, लेकिन एटम को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। तो इस समस्या को विजुअलाइज करने के लिए, या इस समस्या को दूर करने के लिए पीपी इवाल्ड ने एक नया लैटिस का कंसेप्ट दिया जिसको रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। और इसमें बता चुके हैं आपको रेसिप्रोकल लैटिस जो हम बनाते हैं, देखिए रेसिप्रोकल लैटिस जो बनाते हैं, हम बोल दिए 4 स्टेप को आपको ध्यान देना होगा। पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, ये देखिए पहला स्टेप में आपको कोई भी एक कॉमन ओरिजिन, कोई भी लैटिस पॉइंट को एक ओरिजिन सेलेक्ट करना होगा। तो आपकी इच्छा है कि कहाँ पर आप सेलेक्ट, और उस ओरिजिन से आपको प्रत्येक पैरेलल प्लेन पर नॉर्मल खींचना है। उस नॉर्मल का लेंथ जो लेना है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल लेना है। थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ दिस नॉर्मल्स फॉर्म द रेसिप्रोकल लैटिस। क्योंकि जितने टर्मिनल पॉइंट हैं नॉर्मल का, सब पर मार्क लगा देते हैं, और इन मार्क जो है, जो लैटिस ऑफ मार्क या नेटवर्क ऑफ मार्क, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट को रेसिप्रोकल। ये एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसमें बताए कि इस फिगर में बताए कि कई प्लेन आप ले सकते हैं। पैरेलल प्लेन पर एक नॉर्मल खींचना, जिसे नॉर्मली ओरिजिन यहाँ लिया, ओरिजिन से उस दोनों प्लेन के बीच की दूरी के बराबर ये नॉर्मल ले लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिए, देखिए इस जगह लिख दिए 100। लेकिन उसके ऊपर एक प्लेन होगा, उतना ही दूर ऊपर एक प्लेन होगा, वहाँ फिर नॉर्मल को डबल लेंथ लेकर के हम यहाँ पॉइंट दे दिए। इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं आगे, आप ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा पैरेलल प्लेन लेते हैं, वहाँ पर फिर नॉर्मल खींचते हैं, वो हुआ 001, उसका डबल फिर ट्रिपल। ठीक है। और तो एक पैरेलल प्लेन ये हुआ, एक पैरेलल प्लेन हुआ, तीसरा पैरेलल प्लेन हम यहाँ से ले सकते हैं। वो 3 डायमेंशनल फिगर के कारण ये प्रॉब्लम होता है, चूंकि ये 2 डायमेंशन पर आप देख रहे हैं। ये हुआ 101, 102, 103,
इस तरह से जो नेटवर्क मिला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह जो पॉइंट का जो नेटवर्क मिला, जो नॉर्मल के एंड पॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब हम रेसिप्रोकल लैटिस को लोकेट कैसे करेंगे, तो हम लोग इस प्रोसेस के अनुसार बढ़ सकते हैं। फिर वही, चूंकि आप इन्वर्स लिए हैं तो उसका इन्वर्स फिर लेना पड़ेगा। द नॉर्मल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन ऑरिजिन, जो भी बता चुके। ए पॉइंट ऑन द नॉर्मल एट ए डिस्टेंस from the origin equal to 1 by DHL inverse of interplanar spacing has been placed. The collection of such points form a periodic array. This array is called the reciprocal lattice. वही चीज फिर हुआ। अब मैथमेटिकल पार्ट इसका देखिए। द एबव मेथड इज ज्योमेट्रिकल वन, अभी जो ऊपर देख रहे थे। We shall now set up formula for finding the reciprocal lattice of a direct lattice algebraically. ये ऊपर में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे वो ज्योमेट्रिकल था। अब आप मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, तो कोई भी क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टल में यूनिट सेल लेंगे, यूनिट सेल में 3 एक्सिस लेंगे, ए बी सी, और मोस्टली हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल लेते हैं जिसके कॉर्नर पर ही खाली आइटम होगा। तो ये चीज हुआ। ओके, उस क्यूबिक सेल का यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम हम लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1D110 इंटू एरिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ वॉल्यूम V। सो वी में राइट दिस वन, V इक्वल टू इतना। आप नॉर्मल फार्मूला भी जानते होंगे सिलेंडर का, V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, एरिया यहाँ लिख दिया, और ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग हाइट के बदले ले लिया। अब एरिया जिस प्लेन का लेंगे हम, वो मान लेते हैं बी और सी से प्लेन बना है तो बी क्रॉस सी होगी। अब वॉल्यूम को भी से लिखते हैं, ये 1/D1001, इसी को तो हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं, जिसको सिग्मा लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ये 100 प्लेन के लिए लिए हम एक जनरलाइज इसको कर दिए, HKL लिख देंगे। तो यहाँ लिखे HKL, HKL के बदले 100 लिए हैं तो 100 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब ये सिग्मा 100 हुआ, हम दूसरा प्लेन ले सकते हैं 010, तीसरा प्लेन ले सकते हैं 001। तो ये ए के तरफ लिया, एक इंटरसेप्ट 1 है, ये बी के तरफ है, ये सी के तरफ है। अगर ये लेते हैं तो बी क्रॉस सी ऊपर आ जाएगा। अगर हम 1 बीच में लेते हैं, बी तरफ लेते हैं तो सी क्रॉस ए ऊपर आ जाएगा, और जेड तरफ लेते हैं, सी तरफ लेते हैं तो ए क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा। लेकिन नीचे सबका वॉल्यूम रहेगा, ऊपर में एरिया रहेगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। These three vectors are chosen as the reciprocal translation vector for defining the three-dimensional reciprocal lattice. अब चूंकि ये रेसिप्रोकल लेटिस है, एक तरफ इसका है, देखिए 1 लिखा हुआ है, हम ए स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर दिए, इसको बी स्टार से रिप्रेजेंट कर दिए, इसको सी स्टार से रिप्रेजेंट कर। ये ए स्टार जो है बी और सी पर नॉर्मल है, पहले भी बोले फिर बोल रहे हैं, ए स्टार इज द normal to B and C, that is A star dot A is equal to 1, A star dot B is equal to 0, A star dot is equal to 6, A star dot C is equal to 0, and similarly for other two. अब ये देखिए लास्ट है। Now we are going to discuss the properties of receiver. Here I am going to discuss one property only, and because this question is asked in the examination, and rest property will be discussed in the next video. Okay, so here every reciprocal lattice vector is normal to lattice plane. इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 एक्सिस पे ले लेते हैं। देखिए, पहले ये H डैश K डैश, ये रेसिप्रोकल लेटिस के लिए हुआ।
क्योंकि देखिए प्राइम लगा हुआ है सिंबल, यहाँ स्टार लगा हुआ है, और यही चीज डायरेक्ट के लिए फिर हट जाएगा, ये स्टार हट जाएगा और प्राइम सिंबल हट जाएगा। अब हम ये हुआ रेसिप्रोकल लैटिस पर इंटरसेप्ट, और ये हुआ डायरेक्टली एच डैश बाय एच, के डैश बाय के, एल डैश बाय एल, एक कोई कांस्टेंट मान लीजिए जिसको एन। द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस ओ ए इक्वल टू ए बाय एच। ओके, देखिए इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये फिगर यहाँ होगा, फिगर नहीं दिख रहा है, इसको हटाते हैं। चलिए ए सी इजकल टू ओ ए माइनस ए सी इजकल टू ए बाय एच माइनस सी बाय एल। सो नाउ ऑल लाई इन एच के एल प्लेन। कौन कौन? ए बी और ए सी वेक्टर। नाउ के डॉट ए सी इजकल टू दिस वन, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि अभी तो बता चुके हैं ए स्टार डॉट सी इक्वल टू जीरो था। अब आप ए स्टार इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जीरो आएगा। तो ए स्टार डॉट ए वन होता है, सी स्टार डॉट सी वन होता है, तो ये दोनों वन हो गया, तो ये दोनों बच गया, एच डैश बाय एच माइनस एल डैश बाय एल, और ये टू पाई हुआ इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। ओके, बल्कि यहाँ टू पाई हम दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ए डॉट ए, ये जो देख रहे हैं ए डॉट ए और सी डॉट सी, इसका वैल्यू होता है टू पाई, इसलिए टू पाई यहाँ रहने देते हैं। और ये दोनों चूंकि यहाँ है, ये जो है इसका सॉल्यूशन जीरो होता है, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है, एन माइनस एन जीरो है। तो जब के डॉट ए सी जीरो हुआ, तो उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं के डॉट ए बी इक्वल टू जीरो। और जीरो कब होता है? दो वेक्टर जीरो कब होता है? जब दोनों डॉट प्रोडक्ट हो, यानी एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। दस द वेक्टर के डॉट ए बी जीरो का मतलब क्या हुआ? के ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर है। के डॉट ए सी जीरो का मतलब क्या हो? के ए सी पर परपेंडिकुलर है, यानी सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स दैट एवरी रेसिप्रोकल वेक्टर के इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट लैटिस एच पी। ओके, मुझे आशा है कि आप कुछ समझे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसके, तो इसके बारे में आप अलग कोई सोशल साइट्स है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप कांटेक्ट करके इसको कोई पार्टिकुलर पोर्शन को अगर किस दिक्कत है पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।